Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. Whatever we are doing for self, that is our national security. پاکستان میں اگر کسی چیز پر اتفاق رائے اس وقت تھا تو وہ یہ کہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت ناقابل تسخیر ہے۔ ہندوستان کے ٹیسٹ نے پاکستان کے اندر کھلبلی مچائی، قومی اتفاق رائے کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کا آپ کو موقع ملا۔ ہندوستان کے اندر جو جوبلیشن ہم نے دیکھی، جس قسم کی رپورٹنگ اخبارات کے ذریعے ہم تک پہنچی، پتہ یہ چل رہا تھا کہ جس طرح ہندوستان نے پاکستان کے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ جہاں پر نواز شریف کی حکومت پر بڑا دباؤ تھا، مختلف قسم کے مراحل سے گزرنے کے بعد نواز شریف نے پہیوں چلنا شروع کیا تھا۔ سول ملٹری تعلقات کے اندر بھی تھوڑا سا تناؤ تھا، تو نیوکلیئر ٹیسٹ سے متعلق جو بحث تھی اس نے نواز شریف کو ایک نئی مرکزیت دی، لیکن تمام کا تمام جو وزن تھا وہ نواز شریف کے کندھوں پر ہی تھا۔ 11 مئی 1998 میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ الماتی میں تھا۔ ملٹری سیکٹری آئے اور کہ بہت بڑی خبر ہوئی ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر دھماکہ کر لیا ہے، انڈیا از ناؤ اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور۔ ٹھیک، گاڑی میں بیٹھے تو میں میاں صاحب کے ساتھ گاڑی میں تھا، آگے ڈرائیور اور بیٹھے اسٹاف۔ تو میاں صاحب نے سب سے پہلے میں سے پوچھا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا میاں صاحب اٹس ناؤ اور نیور، بہت اچھا موقع دے دیا آپ کو انڈیا نے، کڑاکے کٹ دیو۔ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ ہندوستان نے چونکہ یہ دھماکے کر لیے، ٹیسٹ کر لیے اور وہاں پر بڑی خوشی ہے تو پاکستان کو بھی کر دینے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ کو جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ 2 دھاروں میں بڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ ایک پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، معاملہ یہ تھا کہ بہت طرف سے مختلف قسم کے ٹکراؤ والے اسرار ہو رہے تھے۔ پریپریشن کا تو عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جہاں اس کے 3 طرف، ایک طرف چائنا ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے، ایک طرف رشیا ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے، دوسری طرف انڈیا آ گیا وہ نیوکلیئر پاور ہے۔ تو صرف اس پیالے کے اندر جو کمزور لنک ہے وہ پاکستان کا ہی تھا۔ اور اگر پاکستان کے اور انڈیا کے ریلیشنز کے اوپر دیکھیں آپ تو 3 جنگیں ہو چکی تھیں اور بنگلہ دیش الگ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ہی پھر یہ نیوکلیئر کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ایک نیوکلیئر پاور کے مقابلے میں ایک نان نیوکلیئر پاور اس کی آرمی کے اندر احساس ہے کہ طریقے کتنا آ جائے گا۔ جب بھارت نے دھماکے کیے تو ایک دم پاکستان میں ایک آواز اٹھی کہ اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو اس بم کو بنانے میں شامل تھے۔ 14 مئی کو انہوں نے مشورہ کیا آپ کی تیاری وغیرہ کیسی ہے، واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ واٹ کین وی ڈو۔ میں نے کہا جی تیاری پوری، آپ بتائیں، ہمیں تو میرے خیال انہوں نے تو میرے خیال میں دھماکہ کرنا چاہیے، اینڈ وی آر ویری ویری ہیپی، کیونکہ ہم تو 1983 سے ریکویسٹ کرنے گورنمنٹ سے کہ ہمیں دھماکہ کرنے دیں، تو وہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ نہیں کرنی جب تک کہ اب دوبارہ موقع نہ ملے، تو اب موقع ملے تو ہم تو بہت خوش ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے۔ بیرونی پریشر بہت تھا۔ سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ کلنٹن کا فون آیا اور انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو یہ کہا کہ آئی نو یو مسٹ بی اپسیٹ بٹ دا بیسٹ آنسر یو کین گیو ٹو انڈیا از ٹو شو پیشنس۔ سو مچ سو کہ پھر کانفرنس کالز بھی آئیں، ایک کال پریزیڈنٹ کلنٹن اور ٹونی بلیئر جو پرائم منسٹر تھے برٹن کے، انہوں نے بات کی، 1-2 مسلم ممالک کے ہیڈز نے بھی کلنٹن کے ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو یہی کہا کہ آپ دھماکے نہ کریں، انڈیا کو اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔ ہم نے 3-4 فیصلے کیے، ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی،
कंसल्टेशन विद द मिलिट्री हाई कमांड जो सर्विस चीफ्स हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो बाकी सियासी कायदीन हैं और सिविल सोसाइटी राय मानेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस, आजकल जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहा जाता है, उसकी मीटिंगें हो रही थी और बार बार बताया जा रहा था। जाहिर है पाकिस्तान देख रहा था, उधर क्लिंटन के जिन फ़ोन का नवाज शरीफ हवाला देते हैं वो बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि 5 दफ़ा कॉल्स आई, $5 अरब की ऑफ़र की गई और धमकियाँ भी होती हैं, ऑफ़र भी होती हैं, लेकिन नवाज शरीफ को आप ये क्रेडिट दें कि उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के मामले में ना किसी का प्रेशर नहीं लिया। हम गाफिल नहीं हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न से, और मैं ये समझता हूँ कि हम इस सिलसिले में अपना फैसला खुद करने का हक रखते हैं। The country so decides, if there is a political desire or a decision, then we can go nuclear in a very short span of time. 3 सर्विस चीफ्स थे, एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की और तीसरे ने कहा कि सर ये आपका फैसला है, यू डिसाइड। कुछ ऐसे भी थे, मिसाल के तौर पर जो उस वक्त के नेवी के चीफ थे, उन्होंने कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और हमें अगर अमेरिका कुछ माली इमदाद देता है या कोई और सपोर्ट करता है तो वो कबूल कर लेनी चाहिए और एटमी धमाके नहीं करने चाहिए। और जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद ही उन्होंने बयान दिया कि मैं तो उसके ख़िलाफ़ था। तो बाकी जो एयर फोर्स और आर्मी के थे उन दोनों ने कहा कि जी ये पॉलिटिकल फैसला है, तो जिस तरह आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे कहा कि कल DCC की मीटिंग है, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की, तो आप उसमें आए, तो वहाँ पे फिर हम करते हैं डिसीजन का कुछ करते हैं फैसला। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर केकू खान को बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया और सर्विस चीफ से, फॉरेन मिनिस्टर थे लाहौर, फाइनेंस मिनिस्टर ताज अजीज़ थे और कुछ लोग भी थे। तो वो डिस्कशन होती रही यही इसी टॉपिक पे और फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, उन्होंने सबका ओपिनियन लिया वेरी डेमोक्रेटिकली एंड दे टुक अबाउट 2.5 hours or so। और उसके बाद ओपिनियन जब एक किस्म का वोटिंग किस्म की हुई तो जनरल कंसेंसस जो था, मेजॉरिटी कंसेंसस वो ये था कि हमें धमाके करने चाहिए। उस वक्त मियाँ साहब ने ये कहा कि अगर उन्होंने 5 किए हैं तो हम 6 करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से बहुत ज़ोरों से इजहार हुआ कि करो धमाका करो। 14 मई को G8 की कॉन्फ्रेंस थी बर्मिंघम में, तो मैंने मियाँ साहब ने कहा कैसे हम अप्रोच करें। मैं कहा मेरा ख्याल है कि वी शुड टेस्ट द वेस्ट बिफोर वी टेस्ट का हमें टाइम मिल गया ना, तो हम अनाउंस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको भी टेस्ट इम्तिहान लें कि आपके कितना दम है, आपने क्या स्टैंड लिया। इंडिया ने तो धमाका कर लिया। हमने देखा कि G8 ने जो कम्युनिके इशू किया मरासला, उसमें बड़ी धीमी मजम्मत थी हिंदुस्तान की। और दूसरा था 19 मई, इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भी थे, LK अडवाणी, उनका बयान बड़ा आया सख्त कि टुडे वी हैव बिकम अ न्यूक्लियर पावर, अब पाकिस्तान अपनी पॉलिसी कश्मीर पर चेंज करे। That insofar as relations with Pakistan are concerned, they impinge not only on our external security but as well as on our internal security. कुछ अफराद थे, मैं उनमें शामिल हूँ, जिनका ये ख्याल था कि हमें धमाका नहीं करना चाहिए, कि पाकिस्तान के पास वो सलाहियत तो पहले से मौजूद है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। वही बम जब चीन में टेस्ट किया गया तो यहाँ भी टेस्ट हुआ, उसी डिज़ाइन का था। यूरेनियम की मकदार काफ़ी थी पाकिस्तान के पास, और मेरी तजवीज़ तो बल्कि ये थी कि उस यूरेनियम को दिखाया जाए और उसकी प्योरिटी का किसी न्यूट्रल बॉडी से अंदाज़ा लगाया जाए, जिससे आपको पता है कि 100% ये बम फटेगा। क्लिंटन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये इंसेंटिव दिया होगा उनको, क्योंकि उसका जिक्र उन्होंने किया था थोड़ा सा कि अगर हम ये धमाके नहीं करते तो हमारे जो कर्ज़े हैं उस वक्त मेरे ख्याल है $5-7 बिलियन थे, जो फॉरेन डेट था, तो वो कर्ज़े हमारे जो हैं वो हमें
पैसे मिल जाएंगे और कर्जे माफ़ हो जाएंगे, वी विल बी एबल टू स्क्वेयर आवर डेट। तो ये चीज़ एक फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया था पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है, क्योंकि फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया था। अमेरिका ने अपना नुमाइंदा भेजा, स्ट्रोप टैलबर्ट आए, नायब वज़ीर ख़ारजा थे। जापान ने नायब वज़ीर ख़ारजा भेजा। क्लिंटन ने 5 टेलीफ़ोन किए, टोनी ब्लेयर ने 3 टेलीफ़ोन किए कि ये ना करें, मॉरल हाई ग्राउंड लें। $5 अरब ऑफ़र किया, ये भी कहा कि आप आएंगे, स्टेट गेस्ट होगा, आप हमारे मेहमान होंगे वाइट हाउस में, आपकी पजीराई करेंगे, इस किस्म की चीज़। जो उस वक्त एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स के पाकिस्तान में, थॉमस साइमंस, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा कि मैं आपसे मिलूं और आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ये समझाएं कि वो धमाके ना करें और हम उनको इकनॉमिकली इतना कॉम्पनसेट करेंगे, इतनी एड देंगे कि हो सकता है आप थर्ड वर्ल्ड से निकल के फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाएं। फिर ड्यूटियाँ लगी मिनिस्टर्स की कि आप हर सियासी कायदीन को जाके मिलें, कोई पीपल्स पार्टी को मिलें, कोई फलाने को मिलें, जितने भी जो सियासी कायदीन हैं, बड़े छोटे सबसे मुलाकात था। मैंने फैसला किया और फिर मीडिया के हवाले से भी तो फैसला हो चुका था धमाके का। साइंटिस्ट ने हमें कहा कि हमें 10-12 दिन चाहिए ये करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम तो अपना काम कर रहे थे और उन्होंने चला दिया था कि पाकिस्तान बिल्कुल टेस्ट करने वाला है। और उससे 1 हफ़्ता पहले 28 मई से आपको पता होगा रोज़ाना ख़बरें यहाँ पे आती थी कि जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद, कोयटा एयरपोर्ट बंद, और वो होता था कि जी शायद हम सामान लेके जा रहे हैं। और फिर दूसरे दिन हमने चेक किया तो पता लगा कि कोयटा एयरपोर्ट पे तो हमारे पास नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी नहीं थी। और इतलात उस वक्त आ रही थी कि शायद इसराइल के तैयारे जो हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट पे इंडिया में आके खड़े हुए हैं और वो अटैक करना चाहेंगे कि हम ना कर सकें। मैंने फौरी तौर पर जनरल जहांगीर करामत से कांटेक्ट किया और डॉक्टर ए.क्यू. खान से, और मैंने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर की ये हिदायत है कि फौरी तौर पे आप प्रेपरेशन थ्रू कर दें ताकि हम जल्द से जल्द इंडिया को उन्हीं की ज़बान में जवाब दे सकें। Is Pakistan going to test its nuclear device? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में उस वक्त कहा जाता था कि जब ये फ़ैसला अमलन हो गया कि पाकिस्तान ये काम करना है तो फिर वो हर किसी से पूछते थे कि दसो ना टेस्ट करिए कि ना टेस्ट करिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो सोच का अंदाज़ा वो ये कि जब उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया होता उसके बाद फिर वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं पब्लिक में, लेकिन प्राइवेटली कंसेंसस हो चुका था कि हमने यही रास्ता अपनाना है। जब ये फ़ैसला हो गया तो उसके बाद फिर साइंटिफिक चीज़ें थी। पॉलिटिकल फ़ैसले के बाद आपने किस तरीके से इस टेस्ट को कामयाब बनाना है, ये बड़ा अहम मौका भी था और मरहला भी था। वो तमाम साइंसदान जो कह रहे थे जी कि आप करें करें करें, द आवर came calling then, you know, you have to now do it and do it right. तो उस वक्त फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी तैयारी शारी करें, पैकिंग शैकिंग करें, सामान भेजना वहाँ पे पड़ेगा बहुत सा, और हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को इन्फॉर्म कर लेते हैं, वील टेक 3-4 days टू डू दैट। तो फिर वो सारा काम जब हो गया तो 19 तारीख को उन्होंने 19 मई को हमें क्लियरेंस दिया कि वी कैन गो टू चागी एंड स्टार्ट आवर वर्क। चागी जहां हमने धमाका किया, ये साइट जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में सिलेक्ट की गई थी। डॉक्टर अशफाक अहमद खुद गए थे। धमाके से 9 साल पहले ये साइट सिलेक्ट हो चुकी थी कि जब हम बम बन जाएगा हम यहाँ इसको टेस्ट करेंगे। मैं तो खैर चागी जा रहा था 1980 से, तो पता था, लेकिन मेरे साथ टीम मेंबर्स थे बहुत से, वो पहली दफ़ा जा रहे थे। रात को जब 12 बजे पहुँचे तो इट वॉज ब्लैक नाइट और पहाड़ भी बिल्कुल काले रंग का है और विल्डरनेस थी, तो इट वाज वेरी ऑसम एटमॉस्फेयर। तो खैर वो मेरे कलीग्स कहने लगे आप हमें कहाँ ले आए हैं भरल। तो वहाँ पे वो रात को रहे, फिर हम और अगले दिन सुबह फिर काम स्टार्ट किया। तो वी वर देयर फॉर प्रेपरेशन भी हमें लगे। 27 को हमने वी वर कम्प्लीटली रेडी, बिकॉज के पहले तैयारी की हुई थी। वो जो हमें चाहिए थी ना 30 दिन वो पहले लगे हुए थे। ये इस वक्त तो बॉम्ब्स को अंदर ले जा के टनल में असेंबल करना था और केबल्स वगैरह ले हुई थी, सब कुछ। टनल भी प्लगिंग हुई थी, थोड़े थोड़े हमने गैप छोड़े हुए थे सिर्फ बॉम्ब के पार्ट्स ले जाने के लिए आखिरी कमरे तक।
وہ پوری ٹنل جو تھی نا اگر ساری پلگ کرنی پڑے تو بہت دیر لگتی ہے اس میں. وہ سارا کام ہوا تو بس پھر وہ 27 کو رات کو ہم کمپلیٹلی فری کام ختم کر کے سب اپنے ریموٹ کنٹرول جو ساتھ سے ڈیٹونیشن کرنی تھی اس پوائنٹ سے ٹیسٹنگ سگنلس چیک کر کے کمپیوٹرز کو ایکٹیویٹ کر کے سب دیکھ لیا تھا ہم نے. نیوکلیر پروگرام کی تاریخ بڑی پرانی. میں نے جب سے صحافت شروع کی ہم نے یہی دیکھا کہ نیوکلیر پروگرام کے گرد جتنی بھی رپورٹنگ ہوتی تھی اس کا محور ایک ہی خان ہوتا تھا. ایک شخصیت جس کا نام زیادہ نہیں لیا جاتا تھا اس وقت اور آج کل بھی ہم ان کو بھول جاتے ہیں, وہ منیر خان صاحب تھے, ڈاکٹر صاحب. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو انہوں نے ہیڈ کیا 1972 سے لے کے 1991 تک. تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ریڑھ کی ہڈی تھی پاکستان کی نیوکلیر پروگرام. اور منیر صاحب اگرچہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی تھے لیکن ان کا جو ذاتی نظریہ تھا وہ یہ کہ پاکستان جیسے ممالک کو اور ہندوستان جیسے ملک کو نیوکلیر توانائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے, ہتھیار کے لیے نہیں. تو وہ پرولیفریشن کے بہت خلاف تھے. تو لہٰذا جو ایگریسو قسم کے سائنٹسٹ تھے, ایکو خان صاحب ہو گئے, وہ ذرا زیادہ لائم لائٹ سٹیل کرتے تھے. منیر صاحب جیسے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے بڑا کوائٹلی کام کیا. تو یہ تمام کی تمام بحث جو ہے سائنسدانوں میں سے ہوتی ہوئی سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی عوام میں بھی چلی گئی. تو عوام کے اندر بھی بڑی توقع تھی کہ کیسے رسپونڈ کرے گا پاکستان. Pressure is mounting on me. After all, I represent my own country. I also to take into account the popular sentiment of the people of Pakistan. We now have legitimate security concerns. ایک غیر معمولی دن تھا. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ صبح سے ہر طرف اسلام آباد کے اندر ایک قسم کی خبروں کی تھرتھلی مچی ہوئی تھی کہ بس آج یا کل کچھ ہونا ہے. جو ڈیٹ تھی وہ آخری وقت تک انڈر ریپس رکھی ہوئی تھی. سوشل میڈیا تو تھا نہیں, 24/7 چینلز تھے نہیں. تو لوگوں کی زبان سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ جی آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں جو ہے کچھ ضرور ہوگا. لیکن اس ٹیسٹنگ سے کوئی 4-5 گھنٹے پہلے مدیران نے آپس میں میٹنگ کی اسلام آباد کے اندر, جس کے اندر 2 ہمارے مدیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں تو اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا. انہوں نے ہمیں بعد میں آ کے بتایا کہ جی ہمیں بریف کر دیا گیا تھا کہ اب آپ تیار ہو جائیں, ہم نے آج حساب برابر کر دینا ہے. پھر اللہ اکبر کی جب آواز آئی اور چند کوئی 1-2 سیکنڈز کا فرق آیا تو رنگ فق تھے سب کے, اور ایک دم پھر چاگی کا پہاڑ سفید ہو گیا. تو وہ ایک ظاہر ہے بڑی اس میں تھی نا, بندہ ہوتا ہے جذبات میں ہوتا ہے. گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. The nuclear explosions of Pakistan of 20th May and 30th May have helped to establish military and political parity between Pakistan and India. And we feel this is again a major development which has qualitatively altered the life and destiny of the 1.2 billion people of South Asia. But now that we have responded positively to the Indian arms race, that when they got nuclear, we also developed nuclear capability. So this definitely has kept India to senses.
Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. There was no release of radioactivity. I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. तो जब ये धमाके हो गए, द फर्स्ट थिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ डिड वाज टू कॉल क्लिंटन और उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट आई हैड टू डू इट. उसने कहा नवाज आई नो यू हैव डन इट एंड यू हैव डन एग्जैक्टली व्हाट योर एनिमीज में हैव वांटेड यू टू डू. इसका जवाब या ये क्यों उन्होंने कहा, ये अभी तक ना मुझे समझ आया ना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की समझ में आया है, लेकिन वो हमने देख लिया कि जो कुछ 5 महीने के अंदर अंदर हो गया. अमेरिका ने तो फ्लैट सैंक्शंस पाकिस्तान को कर दी और बिल क्लिंटन जिनका ख्याल था कि मैंने बड़ी काविश की, मैंने 5 कॉल किए. अब देखें जो बाइडन ने 1 कॉल नहीं की और इमरान खान को उसके ऊपर कितना गुस्सा है. आप अंदाज़ा करें कि जिस प्रेसिडेंट ने 5 कॉल की हों और साथ 5 बिलियन भी ऑफ़र कर रहा होगा, तो उस की कॉल का ना माना जाना उसके लिए कितना गुस्से का बायस बनेगा. और उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से आने वाली मिलिट्री एड के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट था. जो अमेरिकी कवानीन बड़े वाज़े हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप पर सैंक्शंस लग जाएंगे. तो अगर आपने डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं तो आप पर सैंक्शंस लगनी ही थी. First, I deplore the decision. By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. And although Pakistan was not the first to test, 2 wrongs don't make a right. I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law. उस सैंक्शन से ये हुआ कि हमारा जो पैसा बाहर से आता था इमदाद मगरबी ममालिक से, वो बंद हो गई और हमारे जो फ़ौजी बाहर ट्रेनिंग करते थे वो बंद हो गई और हमें जो असला हम लेते थे मगरबी ममालिक से, यूरोपियन ममालिक से और अमेरिका से, वो बंद हो गई. सबसे पहले मुझे भेजा गया सऊदी अरब. तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने इसको बहुत खुशी से महसूस किया है. हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का फ्री आयल देते हैं. और हमने अपने जहाज़ों को कहा है कि ये टैंकर्स जो होते हैं कि पहले पाकिस्तान में जाकर उनको फिल करें और उसके बाद फिर कहीं और जाना हो तो फिर जाएं. तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन हमने मलेशिया के साथ तय की है कि पेमेंट हम करते जाएंगे, आप पाकिस्तान को ये कुकिंग ऑयल जो है वो सप्लाई करते रहें. तो तीसरी बात ये थी कि आपको हम पाकिस्तान से ये तवक्को रखते हैं कि जितनी मैन पावर यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए बेचते हैं और उससे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलता है, उसकी तादाद भी हम बहुत ज़्यादा कर देंगे. और ये भी बताता चलूँ मैं, ये बात की बात है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कोऑर्डिनेशन भी हुई कि हम ये प्रेशर कैसे बर्दाश्त करें और बाकायदा सीरियस गुफ्तगू भी हुई जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे लाहौर के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए 1999 में. ईरान के उस वक़्त सदर मोहम्मद ख़ातमी साहब थे और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि आप सैंक्शन से न घबराएं, ये हमारे बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं और ये जो मुल्क आपकी मुखालफत कर रहे हैं ये भी हमसे ही तेल लेते हैं, बरतानिया हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो, तो वो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बड़ा है. तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वी कैन सप्लाई टू पाकिस्तान. अगर नवाज शरीफ का ख्याल था कि न्यूक्लियर धमाके करने के बाद उनका सितारा अरूज पर चला गया तो गलत नहीं, लेकिन उसके बाद के हालात ने साबित किया कि न्यूक्लियर धमाके करने से
मईशत तरक्की नहीं करती, न्यूक्लियर धमाके करने से सिर्फ सियासी तहफ़्फ़ुज़ नहीं आता। तो एक साल के अंदर ही आपने देखा 2 बड़े वाक़यात हुए, बल्कि 3। जहांगीर करामत साहब को फ़ारिग किया गया और नवाज शरीफ ने अपनी तारीख़ में एक और नाम का इजाफ़ा किया कि आर्मी चीफ़ लगाने के बाद इनकी उनसे नहीं बनती। मुशर्रफ को आर्मी चीफ़ लगाया गया, मुशर्रफ के होते हुए करगिल हुआ, और करगिल के बारे में ये कहा जाता है कि मुशर्रफ ने समझा चूँकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन हमारे पास मौजूद है, वैसे तो काफ़ी अरसे से हमारे पास मौजूद था, लिहाजा हिंदुस्तान के साथ हम इस लेवल पर इंगेजमेंट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की हुकूमत भी गई। तो पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर ताकत बनने के बाद मसाइल आपको बढ़ते हुए नज़र आए। इसका ताल्लुक न्यूक्लियर डिटेरेंट से नहीं है, मेरे ख्याल में हम अपने आप को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। न्यूक्लियर वेपन जिन ममालिक के पास है उनको पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ता है। हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी न्यूक्लियर वेपन्स की पब्लिक टेस्टिंग से पहले के मसाइल थे, जो बाद में बहुत गंभीर होकर सामने आए, लेकिन नवाज शरीफ मुश्किलात में रहे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। अब आर्गूमेंट ये किया जा सकता है कि कोई न्यूक्लियर डिटेरेंस का ख़ास पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया ये जानकर बाज आ जाती है कि पाकिस्तान के साथ एक ख़ास हद से आगे आपको सींग नहीं लड़ाने चाहिए। तो जो बड़ा स्ट्रेटिजिक हमला है पाकिस्तान के ऊपर, वो प्रिवेंट होता रहा और होता रहेगा। देखिए, द न्यूक्लियर डिटरेंस हैज वर्कड, एक बैलेंस ऑफ टेरर है। उसके फ़ौरन बाद एक जंग भी छोटी सी हुई कारगिल की। अगर बम ना होता तो ये इंडिया पाकिस्तान जंग हुई थी। 4 क्राइसिस हुए हैं उसके बाद, कारगिल, दिल्ली, मुंबई और फिर 2019 पुलवामा। इंडिया ने बॉम्बिंग की, हमने 24 घंटे में बॉम्बिंग का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए, अभिनंदन को पकड़ा और मामला वहाँ ख़त्म हो गया। That is fantastic. Thank you. जंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे पास बॉम्ब है, उनके पास बॉम्ब है, एंड द बैलेंस ऑफ टेरर, दहशत का तवाज़न काम कर गया। ये हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से हमें बचा लिया। और ये भी बता दूं मैं कि अगर हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब ना होता उस वक्त, तो 9/11 के बाद अमेरिका ने भी आपका तिया पांचा कर देना था। हाँ, पाकिस्तान अब भी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास एटम बम है, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ फ़लस्तीनियों को? क्या वो किसी को भी फ़ायदा हुआ या नुकसान ही नुकसान हुआ उससे? अब न्यूक्लियर असला तो आ गया है, अब वो लोग नाकाम हो गए जो मेरे जैसे जो कहते थे कि भाई ख़त्ते में न्यूक्लियर असला ना हो, क्योंकि भारत ने चीन से मुकाबला करना है, चीन ने अमेरिका से करना है, और पाकिस्तान इसमें फंस गया है कि वो भारत से मुकाबला जारी रखे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कहीं हमें इससे कहीं रोकना पड़ेगा, कोई न्यूक्लियर स्टेबलाइजेशन के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे भारत और पाकिस्तान को, ताकि ये ना हो कि हादसाती न्यूक्लियर असले का तबादला हो जाए, और ये अगर एक दफ़ा हो गया तो फिर उसकी एस्केलेशन होगी, सेकंड स्ट्राइक होगी, फिर थर्ड स्ट्राइक होगी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी हो सकती है। तो ये एक बहुत खौफनाक मामला है। भारत और पाकिस्तान के पास इतना न्यूक्लियर असला आ गया है कि वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर एक बार नहीं कई दफ़ा तबाह कर सकते हैं। I would say the missile which we have is quite efficient, is quite reliable, is quite accurate. What we have heard about the Indian missile Agni, only 3 tests were done at a target of about 1,000 kilometers, and they were not so accurate. तो इंडिया ने जब हमें चैलेंज किया 2008 में कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से कि हम 3-4 डिवीजन आर्मर्ड डिवीजन रेज किए हैं विद द लेटेस्ट आर्मामेंट, पाकिस्तान को हम स्पेंसर मूवमेंट से अटैक करके लंबाई में है, लंबा मुल्क है, दरम्यान में से काट के 2 कर देंगे और बीच में आके हमारी ऑक्यूपाइड करके हम हमारी फोर्सेस भी हट जाएंगी, विल स्ट्राइक लाइटनिंग अटैक से आएंगे हम। तो हमने फिर टैक्टिकल वेपन बनाया, और इट इज़ लाइक मेकिंग अ रिस्ट वॉच एज थिन एज अ पेपर, ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें। तो इतना सा न्यूक्लियर बॉम्ब जो एक वो मल्टी बैरल लॉन्चर दिखाते हैं ना वर्ल्ड परेड में, जिसमें से वो शेल फायर करते हैं, उसमें से वो मिसाइल फायर होती है छोटी सी, और उसके टिप में न्यूक्लियर वॉरअप भी लगा हुआ है।
and its force, its power is equal to 1000 tons of TNT. TNT जो नॉर्मल एक्सप्लोसिव होता है उसके 1000 टन के बराबर उसकी पावर है. इतना सच बॉम्ब है. तो ये जो they could never imagine कि पाकिस्तान can make this. अब आप उसको सितम ज़रीफ़ी कह लें, हादसात कह लें, वाक़यात कह लें, साजिश कह लें, पाकिस्तान में जो भी मरकज़ी फ़िगर रहा जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान को डिक्लेयर्ड या हकीकी न्यूक्लियर पावर बनाने से जुड़ा रहा, उसकी किस्मत जो है वो ख़राब ही रही. जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आई. AQ खान साहब जो फोर फ्रंट पे थे, उनका मामला तो बहुत ही ख़राब हुआ. पब्लिक अपॉलॉजी उससे करवाई गई और करवाई भी फ़ौज ने करवाई, उस वक्त के फ़ौजी सरबराह ने. मुझे याद है कि मेरी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो पहली बाई लाइन थी वो AQ खान वाले मामले के ऊपर बाद में बहुत ब्रीफिंग्स हुआ करती थी उस ज़माने में. आजकल तो वो रिवाज बिल्कुल नहीं है. तो उसके ऊपर मैंने चंद एक सवाल किए तो बहुत ही सख्त किस्म की इंगेजमेंट हुई. तो आके मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मैं काम करता था, तो मेरी पहली रिपोर्ट इन मामलात के ऊपर ही हुई. AQ खान के साथ जो हुआ और जिस तरीके से उसको नज़रबंद रखा गया, फिर जिस तरीके से वो फौत हुए, आपको AQ खान की असल ताकत और असल अहमियत और असल कद काट को जानना होगा, ये जानने के लिए कि उनके लिए ये कितना बड़ा कम डाउन था. यानी अगर आप उस ज़माने के AQ खान को नहीं जानते, जब वो पाकिस्तान के अंदर वाहिद नाम था जो पाकिस्तान की प्राइड समझा जाता था, तो आप ये नहीं जान सकते कि जब उनको नज़रबंद किया गया तो ये कितना बड़ा ड्रॉप था. क्योंकि हमने दोनों देखे, मैंने जब भी उनको इंटरव्यू करने के लिए गया तो वो इतनी सिक्योरिटी को हॉप करना उस वक्त के वज़ीर आज़म के लिए या सदर के लिए या आर्मी चीफ अगर बाद में कम सिक्योरिटी होती थी. AQ खान वॉज द मैन. From the man to become the most condemned man in Pakistan is a great fall. That's another. Nawaz Sharif is a classic case in point. नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया? देखें, अब कभी हम कहते हैं कि जी भुट्टो को सज़ा ज़ियाउल हक ने इसलिए दी कि उसने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था. फिर हम कहते हैं कि मुशर्रफ को इसलिए आया कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे तो उसकी सज़ा दी, और हम सब उसके पीछे अमेरिका ढूंढते हैं. बैनुल-अक़वामी साजिशों को आप ना नज़रअंदाज कर सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, लेकिन यही हमारी बदकिस्मती है कि हमने जिसने जो किरदार अदा किया उन सबको मुतनाज़ा बना दिया. इस कौम में हीरो हमने रहने ही नहीं दिए. कदीर खान साहब बहुत परेशान थे अपने आखिरी दिनों में, और वो उनका मौक़िफ़ ये था, इसमें जो बड़े लोग थे वो तो छूट गए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा. मैं मारा गया, मुझे नज़रबंद किया गया, मुझ पे उंगली उठी. तो हाँ, उन्होंने माफ़ी तो मांग ली और टेलीविज़न पर आके मांग ली, लेकिन उनके दिल में एक रंजिश रह गई और उसका इजहार उन्होंने मुझसे किया और बहुत से और लोगों से भी किया. अहम दिन और तारीख़ें कौमों को डिफ़ाइन करती हैं. कोई वजह है कि अक़वाम अहम तरीन दिनों को कैलेंडर के ऊपर मार्क करते हैं. तो 28 मई को अगर आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी डिफेंस के ज़ाविये से देखें तो पाकिस्तान के क़याम के बाद अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन दिन है तो 28 मई और मई का महीना है. लेकिन कमाल बात यह है कि जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वालों, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथन करने वालों के साथ वो कुछ हुआ, इस महीने के साथ भी वही हुआ. अब ये हादसात हैं या महज इत्तफाक है या इसके अंदर कोई मंतक है कि उसामा बिन लादेन की रेड देखें तो वो मई के अंदर होती है, वो अप्रैल में भी हो सकती थी, वो जून में भी हो सकती थी, वो मई के अंदर होती है. 12 मई का वाक़या जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल नर्व सेंटर को चोक करने का और ज़िवा करने का था, जो बदतरीन निशान छोड़ के गया कौम के जहन पर और कुचोके लगा के गया, मई का महीना. 9 मई आप देख लें,
جو بدترین واقعات ہیں پاکستان کے، ان میں سے ایک ہے جب پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن اداروں اور پاکستان کی عمومی جو مونیومنٹس ہیں، صرف سیکیورٹی کے مونیومنٹس نہیں تھے اس کے اندر، ان کے اوپر حملہ کیا گیا. آزاد جموں و کشمیر کے اندر ہونے والے واقعات کو آپ دیکھیں تو 8 سے لے کر 12 تک کس قسم کے واقعات ہوئے. اور اگر آپ اسی مہینے کے حالیہ واقعات کو اٹھا کے دیکھیں تو کورٹ پروسیڈنگز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کی تمام سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بدترین اٹیک کے نیچے ہے مئی کے مہینے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں جب پاکستان نیوکلیئر طاقت بنا، ڈکلیئرڈ نیوکلیئر طاقت بنا، جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ اٹ واز پاکستانز فائنسٹ آور، اس مہینے کو ہم نے پھٹیچر ترین مہینے میں کنورٹ کر دیا. میرا ماننا یہ ہے کہ 28 مئی اگر 2 مہینہ ہوتا، 12 مہینہ ہوتا، 9 مہینہ ہوتا، 8-11 مہینہ ہوتا، اور اس کے بعد مئی کے اندر جو فساد برپا ہے وہ نہ ہوتا، تو ہم 28 مئی کو کسی اور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے. لیکن ہم نے سیلیبریشن کے جو نشانات ہیں از خود مٹا دیے، ہم نے مونیومنٹس ہٹا دیے، ہم نے میزائل سسٹمز کے جو ماڈلز ہیں جو پہلے خود بڑے جوش و جذبے اور محبت سے لگائے ہوئے تھے، ان کو نکال دیا، اور 28 مئی کی تاریخ کو قوم کے ساتھ ہونے والے بدترین چھوٹے چھوٹے سانحات کے نیچے بری کر دی. میاں محمد نواز شریف 28 مئی کو بھلے بن جائیں پارٹی کے سربراہ، یوم تکبیر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یوم تکبیر کے گرد جو ماحول بنا ہوا ہے اس نے یوم تکبیر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی. ایک بہترین موقع پاکستان جیسی قوم کے لیے کہ کسی ایک نقطے پر اکٹھا ہو، ایک ایسے مہینے میں آتا ہے جس کی بدترین یادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں.